perspective. Mahima, appreciate you taking out the time and speaking with us. This is important to understand what's happening in Jammu and Kashmir. You know, from the galvanization, Mahima, that we got to see during the Lok Sabha elections, it seems to me, and perhaps it's a common feeling, that the response to this casting of mandate is going to be very heartening, and it's going to be very high. Well, Vineet, it is a historic moment. Jammu and Kashmir is all set to vote in the assembly election in 2024. But before going to that, we'll give you a glimpse that where we exactly are. We are at the Dal Lake. We'll be joined by a few people here to give a pulse of what exactly is the mood on the ground. But also, Vineet, like you correctly pointed out, Jammu and Kashmir is set to vote in the first phase of assembly election. Tomorrow, the polls are taking place after a decade and would count as the first regional election in the UT after the abrogation of Article 370, like you correctly pointed out, and the division of the erstwhile state in two federally controlled territories in 2019. Also, we need the last assembly polls were conducted in 2014, after which PDP and Bharatiya Janata Party formed a coalition government that lasted just 3 years. Also, what is important, we need to tell our viewers that in the first phase of election, that is going to be held tomorrow. 24 assembly constituencies are going to poll. The polling will be held in 4 seats of Pulwama, 2 seats of Sofian, 3 seats of Kulgam, 7 seats of Anantnag, 2 seats of Ramban and Benihal, 3 seats of Kishtwar and 3 seats of Doda district. Now we are in Srinagar. We'll have a glimpse. We'll have a mood, a taste of what exactly people on the ground are thinking. We are in Srinagar. We'll quickly start with exactly of what is the mood. Sir, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है और मैं जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब हूँ. तो इस वक्त मैं कहूँगा साउथ कश्मीर में उत्सव का माहौल है, जो कि 10.5 साल बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बन रही है. मैं कहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 अगस्त 2019 को जो एक यहाँ के कश्मीरी जम्मू और लद्दाखी की इज्जत पार्लियामेंट के पटल पे उछाली थी विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, सो द पीपल विल वोट अगेंस्ट दैट एंड विल फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, जो कि उनके दीरीना मसाइल जो कि पिछले 10.5 साल से अमूमी तौर और 35 साल से जो रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ यहाँ के नौजवानों के खून पे करते आई है. But what do you think should be the major core issues if we talk about the people, the mood of the people on the ground? Because you yourself said that it is, it is a celebratory moment for the people here in Kashmir as well. But if we talk about the issues, the core issues, what do you think? How do you take abrogation of Article 370? Of course, there have been a lot of, there are few parties, political parties claiming the restoration of Article 370. And the Bharatiya Janata Party, the ruling party, has correctly stated that it is a history and will always remain as in history. How, if we talk about the mood of the people on the ground, how do you take this particular issue to coming to this election, and also what are the different perspectives that people might think and vote this time? I think you have not heard me correctly. The elections which are going to be held right away, after we can say time lapse of 10.5 years more, for the popular government, the people, the political parties, the real representatives of Jammu Kashmir want the peace with the dignity. The real representatives of Jammu Kashmir want the peace with the development, but not at the cost of sukoon qalb, जिसे कहते हैं दिल का सुकून. यहाँ के लोग वो चाहते हैं. कैसे आपको लग रहा है कि सुकून नहीं है? मैं वही समझना चाह रही हूँ, because I heard you correctly and that is why. भारतीय जनता पार्टी या कोई और, जैसे भारतीय जनता पार्टी या हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं आर्टिकल 370 एंड 35 इज़ द हिस्ट्री. मैं कहता हूँ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, दैट्स नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड. That can be repeated as it was repeated in 1951 when this article was given to us, the people of Jammu Kashmir, by the Constituent Assembly of India and by the Constituent Assembly of Jammu Kashmir. But sir, Article 370 हटने से कई ऐसी लोगों को, क्योंकि I'm talking about the people of from the voices of the people, they have said that they are really grateful of the fact that there have been voices also from the ground that they have said that they have literally were deprived of few rights that came under Article
Article 370, and now they're really happy of the abrogation of Article 370. Then why, if the abrogation has already happened, why the political parties, I really want to understand from you that why Article 370, why isn't it about the development, why isn't it about the rest of, because I would also love to ask you about the development, that what exactly the development has gone into Kashmir, and also why the Article 370 has been the core still in the assembly election. We had seen it in the Lok Sabha, but still now the stretch has come to the assembly election as well. देखिए, एक बात मैं बोलूँगा आपको, आर्टिकल 370 और 35 एक बोन ऑफ कंटेंशन था, which on the basis of which the relation with the Union of India has extended by the Maharaja of Jammu Kashmir. और मैं कहूँगा यहाँ की रीजनल पार्टीज़ की ये इम्पोर्टेंसी थी, जिन्होंने 29 साल या 50 साल यहाँ हुकूमत करके, चाहे वो सिंगल पार्टी में रहे या कोalition पार्टी में रहे, कि इस आर्टिकल को परमानेंट नहीं कर पाए. Now I can say on my right there is, we can say, a new phase. The people of Kashmir want the change, not in the form of engineer, but in the form of जहाँ जो localite है, जिस बंदे ने यहाँ पत्थरबाजी देखी है, जिस बंदे ने यहाँ टेररिज्म देखा है, जिस बंदे ने यहाँ खून खराबा देखा है, और वो पार्टियाँ जिन्होंने यहाँ के नौजवानों को 2 लाख नौजवानों को कब्रों में अभी तक सुलाया है, कई हज़ार, there are 41,000 people who are languishing in the jails of J&K and outside. Let me complete. Out of them, 22,000 people are not being charged. Why the government of India are not releasing them on the humanitarian basis? Just like they have engineered, we can say, the release of Engineer Rashid. Just like they have engineered the release of more draconian cases of Wahid Parra, which is a contesting candidate for the Pulwama. Why they are not doing for the common people of Jammu Kashmir? क्या यहाँ के नौजवान का खून इतना सस्ता है? एक के साथ एक वर्ताव, और जो उनकी बात तूती में तूती बोले तो उसके साथ दूसरा वर्ताव. That is what the people want to change, and this election is going to change the fate of Jammu Kashmir and shall slap for those people who have voted and have got against the rights of Jammu Kashmir. सर ने स्टोन पेल्टिंग की बात की, यहाँ पे नौजवानों की बात की. सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी. मैं मोहम्मद फ़हीम ऋषि, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट ईदगाह कॉन्स्टिट्यूएंसी डाउनटाउन से. सर, क्योंकि आप कंटेस्ट भी कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके आपके क्या वो ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्या आपकी ऐसी चॉइसेस रहेंगी अपने लोगों के लिए, कि या हम बात करें अगर कश्मीर की, हम खाली ईदगाह की बात नहीं करते हैं क्योंकि आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अबॉर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि सर बोल रहे थे कि नहीं इसको परमानेंट कर देना चाहिए था, इट हैज़ बिन अ डिबेटेबल इशू, but do you think debating about something that has already been abrogated, and rather than moving forward and thinking about the positive perspective of that? मैं डाउनटाउन को ही रिप्रेजेंट करूंगा, मैं शहर खास की ही बात करूंगा. जो आज तक यहाँ पे पार्टियाँ थी, उन्होंने शहर खास को दिया क्या? खाली हमारे नौजवानों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, हमारे नौजवान नस्ल को उन्होंने ख़त्म करे. जो क्रिकेट खेलने निकलते थे उनको उन्होंने गोलियों की बूछाड़ अपने कुर्सियों के लिए लगाई. क्या पैलेट्स लगाए? क्या वही नौजवान आज इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना आया है और उस नौजवान को भी सताया जाता है? आप कॉन्टेस्ट क्यों कर रहे हो? ये हसरत है इस ऐसी पार्टियों पे जो यहाँ के पार्टियाँ हैं. आज वो उनके मुंह के ऊपर तमाचा है कि हम डाउनटाउन में पले बड़े, हमने मिलिटेंसी भी देखी है, हमने पथराव भी देखे, हमने गोलियाँ भी देखी, हमने पैलेट्स भी देखे, बट ये आज हमारा ही क्या कलेजा है कि हमने आज इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि हमारा यूथ जो जेलों में बंद है उनकी बात कोई नहीं करता है. जो हमारा यूथ आज स्टोन पेल्टिंग के केसेस में, झूठे केसेस में बंद है, जो यहाँ के पुरानी पार्टियाँ उन्होंने बंद करके, हम उसलिए सियासत करने. डेवलपमेंट तो होती रहेगी. डेवलपमेंट मैंने 5 साल में मैंने एटलीस्ट 10 से 15 करोड़ रुपए विदाउट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैंने एज अ इंडिपेंडेंट वर्कर मैंने और सोशल एक्टिविस्ट मैंने काम किया है. डेवलपमेंट तो होती रहती है, मगर यहाँ के नौजवान को, चलिए 370 के बाद हमारे नौजवान को क्या दिया गया? क्या 370 के बाद आज बीजेपी दावा करती है 370 के बाद हालात ठीक है? कौन सी हालात ठीक है? डाउनटाउन का नौजवान एक बात नहीं कर सकता है? क्या डाउनटाउन के नौजवान को पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? क्या जो मेरे रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार मिलिटेंट था, उसको आज पासपोर्ट, उसको हज पे जाने का हक नहीं है, उसको अब्रॉड जाने का, पढ़ाई का हक नहीं है? क्या यही 10 साल से 370 उड़ाने के बजाय 35 मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 370 की बात की, आपने मिलिटेंसी की यहाँ पे बात की, आपने कहा कि हम
हम डाउनटाउन के पीपल हैं, आई विल ओनली रिप्रेजेंट डाउनटाउन। क्यों हम अब क्योंकि आप एक कैंडिडेट रहेंगे, आप एक चुनिंदा एक कैंडिडेट बन के आएंगे, तो रिप्रेजेंटिंग कश्मीर आई वुड से वुड बी अ लिटिल मोर क्रिटिकली एंड पॉलिटिकली करेक्ट। बट क्यों ऐसा, जब आप कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी देखी, हमने स्टोन पेल्टिंग देखी, हमने तमाम चीज़ें देखी, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टोन पेल्टिंग कम हुई है, मिलिटेंसी यहाँ पर कम हुई है, कहीं ना कहीं जो ऑल्टरकेशन थी वो कम हुई है, जिसकी वजह से आपने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो होती रहेगी। तो क्या आपको नहीं लगता क्या सिर्फ सरकारी नौकरी पाना ही रोज़गार होता है? क्या डेवलपमेंट में जब इतने नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है? रोज़गार को किस पलड़े में आंकते नज़र आते हैं कश्मीर के लोग? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि पब्लिक ऑफ कश्मीर, अगर हम बात करते हैं वॉइस, बिकॉज यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द पीपल, तो क्या सिमट के रह जाएगा सिर्फ आर्टिकल 370 में, या हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, हम बात करेंगे स्कूल्स के बारे में? क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, चाहे वो एम्स हो या तमाम चीज़ें हों, जम्मू कश्मीर को देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि स्कूल से लेके तमाम चीज़ें देखने को मिली है। पंचायत, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि पंचायत के जो इलेक्शंस है वो बंद हो गए थे, वापस से कराए गए, तो कहीं ना कहीं कई फ्रीडम्स जो हैं वो देखने को लोगों को मिली है। इसको कैसे आंकते हैं आप? एक्चुअल मुद्दों की अगर हम बात करते हैं 370 को दरकिनार करके, तो क्या होंगे एक्चुअल मुद्दे? देखिए, पहले हमारे डाउनटाउन में एक्चुअल मुद्दे, जो नौजवान बाहर या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, यूएस जाना चाहता है, जिसका चचेरे भाई का चचेरा भाई मिलिटेंसी के केसेस में था, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहले ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा डाउनटाउन में, बहुत बड़ा इशू है डाउनटाउन शहर खास में। क्या या किसी का भाई है, उसका भाई के भाई को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनी? क्या यहाँ का नौजवान उसमें सेटल नहीं होना चाहिए कि खाली दिल्ली, यूपी और हरियाणा वालों को वो ठेके देने हैं? क्या यहाँ का नौजवान, जो लोकल श्रीनगर का नौजवान, उन प्रोजेक्ट्स में नहीं होना चाहिए कि वो भी उस रोजगार के हक है? क्या यहाँ पे जो टनल्स बने उसमें यहाँ के कश्मीरी नौजवान या जम्मू साइड जो भी जम्मू और रामबन के नौजवान नहीं होने चाहिए? या जो श्रीनगर में प्रोजेक्ट्स बने, क्या उसका नौजवान उसका हकदार नहीं है? उसका नौजवान हरियाणा और यूपी का बंदा हकदार कैसे बना? हम कहते हैं कि हाँ प्रोजेक्ट्स हुए, बट वो उनके लिए हुए, वो आउट ऑफ श्रीनगर, आउट ऑफ जम्मू और कश्मीर सारे गए। वो प्रोजेक्ट्स कश्मीर का कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ पे 10 सालों से ज्यादा ही बेरोजगारी होती रही है, ट्रेडर मरता जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.